Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Urma Ajman and today we are here to start the very first chapter of AS Business 9609. The very first chapter of business is about enterprise. This is from the section of business and its environment. Let's start with understanding the chapter name. The chapter name here is enterprise. If I just give you a direct explanation of what enterprise is, so enterprise directly is the risk taking ability of combining all factors of production. But now there might be a question in your mind that what factors of production is, right? Because that's another new word. So factors of production are basically the resources that are required to produce a good or a service. That means that factors of production are those resources या फिर factor of production वो चीज़ें हैं जो किसी भी good या service को produce करने के लिए होनी चाहिए. It's important, it's necessary. Now we have 4 factors of production, right? What are those 4 factors of production? Number 1 that we have is land, that refers to the natural resources. Number 2 that we have is labor, that refers to the human efforts. Number 3 that we have is capital, that refers to the finance invested into the business. And number 4 that we have is enterprise. Enterprise is the risk taking ability of investing finance. तो देखा आपने जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पे आ गए. We started from enterprise and here we are back on enterprise, right? So now let me explain you in a better way. Enterprise कहते हैं उस एबिलिटी को, उस काबिलियत को जो किसी इंसान के अंदर हो और उस काबिलियत में, उस एबिलिटी में वो इंसान जो है वो रिस्क लेना जानता हो. किस चीज़ का रिस्क? कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क. बिकॉज whenever you invest somewhere it's not 100% guaranteed that you will be getting profit out of it, right? Sometimes you get loss. Once you get loss, you have to change your strategies, you have to change your objectives and so on, right? So enterprise is the risk-taking ability. But miss, what if I am the one who have this risk-taking ability? तो मुझे क्या कहेंगे अगर मेरे अंदर ये risk-taking ability है? So the person who has the risk-taking ability of investing finance into the business is known as an entrepreneur. Entrepreneur कौन होगा? Entrepreneur वो बंदा होगा जिसके अंदर risk taking ability होगी. ठीक है? So they will be known as entrepreneur. So if you have a risk-taking ability, or if you are running a business, or if you have invested finance into a business, that is mean that you are an entrepreneur. And the ability that you have is enterprise. Moving on with the factors of production. Let's talk about factors of production. As I told you that factors of production वो चीज़ें हैं which are necessary, which are required, which must be with an entrepreneur if they are starting a business, if they are producing a good or a service. Now, when we are talking about production of a good and service, we are talking about these 4 factors of production, which includes land. First, land refers to the natural resources. That means कोई भी business. Now, you guys are supposed to bring any business in your mind. ठीक है? मैं सबसे easy वाला business अपने mind में लेकर आऊँगी. फ्राइज़ वाले अंकल की बात करते हैं, ठीक है? जो हमें हमारे घर के कहीं आस-पास होते हैं, फ्राइज़ बना के दे रहे होते हैं, ठीक है? अब वो जो फ्राइज़ वाले अंकल होते हैं, उन्होंने अपना स्टॉल, अपना कार्ट, कोई चीज़ ज़मीन पे रखी हुई होती है, राइट? तो उनको लैंड की ज़रूरत पड़ गई. इसके अलावा जो वो आलू वगैरह लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मैन मेड तो नहीं हो सकते ना? वो नेचुरली उग रहे हैं तो वो उनके पास आ रहे हैं, राइट? सो I would say that potatoes are basically considered to be the land. Why? Because that's a natural resource. Then फ्राइज वाले अंकल क्या कर रहे हैं? खुद से बना रहे हैं ना वो. तो वो अंकल खुद जो है वो कौन है? लेबर.
ठीक है मिस, व्हाट इफ दैट कंपनी or that business is producing majority of the goods with the help of machinery? That means you are talking about a capital intensive firm. That means you are talking about a capital intensive firm. So basically we have two types of businesses. One is the labor intensive. बहुत डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए हमारे पास ये वाला टॉपिक आया हुआ है, अदरवाइज हमारे वाला टॉपिक नहीं आता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव आर द बिजनेसेस which produces majority of production with the help of human efforts. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो कौन है? वो इंसान है, तो उसको हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव. ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके स्कूल में आपको एआई या रोबोट्स पढ़ा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, आपको ह्यूमन बींग्स पढ़ा रहे हैं. सही है. सो योर स्कूल इज अ लेबर इंटेंसिव बिजनेस. ठीक है, आपका स्कूल क्या है? लेबर इंटेंसिव बिजनेस. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर टाइप ऑफ बिजनेस दैट इज कैपिटल इंटेंसिव. अब कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन is done with the help of machineries. वैसे इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल आपकी नोटबुक्स हो सकती है. आपके पास जो नोटबुक है जिसमें आप इस वक्त लिख रहे होंगे, वो नोटबुक किसी ऐसा नहीं है कि उसमें जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन है वो इंसानों ने की हुई है. यस, देयर आर ह्यूमंस. आई एम नॉट सेइंग दैट ह्यूमंस आर नॉट प्रेजेंट इन अ कैपिटल इंटेंसिव फर्म. नो, देयर आर ह्यूमंस, बट दोज ह्यूमंस आर प्रेजेंट देयर जस्ट टू ऑपरेट द मशीनरी. ठीक है, तो मेजॉरिटी काम किसका है? मशीन्स का है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की. ठीक है. I hope you guys are getting my point. So what was labor? Labor was the person or the people who are actually doing efforts. And then after learning about labor, here we have another term, another factor of production, that is capital. Which capital is the finance that you have invested into the business. It could be even $1, it could be millions of dollars too. ठीक है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है. देयर इज नो लिमिट. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ $1 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या $1 million तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो यू विल कॉल इट कैपिटल. नो, इवन इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग फॉर योर बिजनेस, एनी इक्विपमेंट फॉर योर बिजनेस, दैट इज ऑल्सो, द मनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल. देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज एंटरप्राइज, जो मैंने अभी आपको समझाया था. दैट इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि इंसान क्या रिस्क ले सकता है. अब ये जो रिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वो रिस्क जो इंसान ले सकता है बाय इन्वेस्टिंग फाइनेंस इनटू द बिजनेस. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द बिजनेस, द नेम ऑफ दिस चैप्टर, we were required to understand factors of production. And while understanding factors of production, we were required to understand the person who takes risk. That means he is an entrepreneur. Again, while understanding factors of production, we also understood that labor is one of the factors of production. But what if the company is depending majority on machinery? Then that company or that business will be known as capital intensive firm or a business. And if their majority production is based on labor's human efforts, then it will be considered to be labor intensive firm. I hope you are able to understand it so far. Moving on with the basic terminologies or the basic concept of business, and the very basic concept, या आप ये कह लें कि according to your book, the very main concept that you should be starting from is the needs and wants. Now what are needs and what are wants? Needs are the resources. अच्छा, जब भी मैं कभी आपसे कहूँगी ना resources, so resources basically refers to चीज़ें. ठीक है, it could be anything, कोई भी चीज़. ठीक है, अब वो फाइनेंस भी हो सकता है, वो आपकी पेन पेंसिल कॉपी भी हो सकती है. एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी योर रिसोर्स. ठीक है, नाउ द रिसोर्सेज दैट आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल. ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो रिसोर्सेज आपके लिए ज़रूरी हैं, दैट आर नोन एज नीड्स. तो मिस मेरे मोबाइल के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं क्या करूँ? Is that my need as well? No, mobile is not your need. You are just addicted to it and it's not your need basically. तो फिर needs क्या हैं? Your needs are food, shelter and clothes. तो मिस एजुकेशन हमारी नीड नहीं है? बिल्कुल नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि इस माशरे में, सोसाइटी में एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, डोंट यू थिंक दैट दे आर स्टिल अलाइव एंड दे आर नॉट they are not dead so far? Why? Because needs में हमारे पास सिर्फ ये 3 चीज़ें आती हैं.
ये 3 चीज़ें अगर आप नहीं होंगी आपके पास, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, देन यू वोंट बी एबल टू स्टे अलाइव, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू टू सर्वाइव। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल आपका होगा, मैं कह रही हूँ बस जिंदा रहने की बात हो रही है, ठीक है? बस सांस लेने की बात हो रही है। Okay, so what are needs? Needs are the resources that are essential for the survival. Once we are learning about needs, we just need to make sure that we only have 3 needs in our syllabus. We cannot say कि मिस मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी नीड है, मिस मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी नीड है, मेरे पेरेंट्स मेरी नीड है। नहीं बेटा, they are not your need. Nobody is your need other than these 3 things. All right. Then let's talk about the concept of wants. Wants क्या होती हैं? Wants are the desires, यानी कि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास हो। Getting my point? So like for instance, I want Mercedes. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास Mercedes हो, ठीक है? So what will I call it? I'll say that the desires of a human being. The desire of a human being is known as wants. अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है that once you get one thing, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपने पास आईफोन लिया, तो एट दैट टाइम आई बॉट आईफोन 12 प्रो, ठीक है? वो भी नॉन पीटीए था उस टाइम पे जब मैंने लिया था। आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि यार अब ना पीटीए लूँगी। अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स आई बॉट इन एक्सचेंज ऑफ दैट मैंने पीटीए, मतलब कुछ पैसे ऐड किए और फिर पीटीए ले लिया। तो मैंने सोचा यार जब तक मैंने आईफोन 12 का पीटीए लिया है तब तक तो उनके पास बाकी उनके जो वेरिएंट्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं या मॉडल्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, अब क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा यार अब मैं ना यही वाला लूँगी, ठीक है? और फिर दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक चीज़ आ जाती है तो यू स्ट्राइव फॉर द अदर वन और द बेटर वन। वंस यू गेट दैट बेटर वन, यू स्ट्राइव फॉर अनदर थिंग दैट इज़ having a greater value or that looks much better than the previous one, right? और ऐसा होता ही रहता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि whatever you strive for or whatever you are demanding or whatever you think कि यार this is my want or whatever you are desiring, क्या आपके पास उसमें से 100 out of like 100% चीज़ें आपको मिल जाती हैं? Do you get all those 100% things? Of course not. क्यों नहीं मिलते? सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आपकी wants कभी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है? आपको एक चीज़ मिल जाएगी, you will move on with the other thing, दूसरी मिल जाएगी, you will ask for another thing, a better one. This is what we call that wants are unlimited, ठीक है? लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको वांट तो हो किसी चीज़ की, यू आर डिज़ायरिंग फॉर समथिंग, बट देन यू आर थिंकिंग कि यार अभी पैसे नहीं है, या यार अभी टाइम नहीं है, या यार छोड़ देते हैं बाद में कभी ले लेंगे, या कोई और आपके पास कोई और कोई और एक्सपेंस आपके पास है जिसकी वजह से आप अपनी उस वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ठीक है? अब याद रखो बेटा, मैं एक सिचुएशन आपको दे रही हूँ। फॉर इंस्टेंस, यू वर हैविंग 5000 रुपीज़ विद यू, ठीक है? Now, once you were having your 5,000 rupees with you, you had a choice of buying any any one of your favorite things. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आप सिर्फ एक परचेज कर रहे हैं, ठीक है? मैं चलो अपनी बात करती हूँ, या तो मैं कपड़े खरीद लूँगी या फिर मैं अच्छा सा नहीं, कपड़े खरीद लूँगी या फिर मैं मेकअप खरीद लूँगी। अच्छा, कपड़ों में भी इट्स नॉट दैट क्लोथ्स जो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल होते हैं, तो चलो मैं इसको कहीं और लेके जाती हूँ। हाँ, मैं बुक्स भी खरीद सकती हूँ 5,000 की 5,000 की, ठीक है? सुना, मेरे पास सिर्फ 5,000 थे, ठीक है? तो मैं मेकअप खरीद लेती या फिर मैं बुक्स खरीद लेती, ठीक है? मैंने क्या किया, आई थॉट कि यार मेकअप से इतना फ़ायदा नहीं होगा, बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, सो लेट्स गो अहेड विद द बुक्स, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने बुक्स परचेज़ कर ली, ठीक है? मैंने बुक्स को परचेज़ कर लिया। नाउ व्हेन आई हैव परचेज़ दोज़ बुक्स, आई हैव गिवन अप ऑन समथिंग। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट आई हैव गिवन अप? दैट वाज़ मेकअप, राइट? अच्छा, अब एक सवाल है कि मिस आपने इसको गिव अप क्यों किया? आपने इसको गिव अप क्यों किया? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड गिविंग अप? बिकॉज़ 5,000 की बुक्स आ रही थी ना, अगर 2500 की भी आ रही होती तो मैं 2500 की बुक्स और 2500 का मेकअप ले लेती, लेकिन मेरे पास तो थे ही 5000 और दोनों चीज़ों की कीमत ही 5000 थी। सो आई कैन परचेज एनी वन थिंग, क्योंकि मेरे पास पैसे अनलिमिटेड कभी भी नहीं थे। दैट मीन्स रिसोर्सेज हमारी जो हैं, दिस इज व्हाट वी कंसिडर टू बी रिसोर्सेज, ठीक है? दैट मीन्स दैट द रिसोर्सेज दैट वी हैव आर लिमिटेड, ठीक है? जो रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं? वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है? लेकिन अब रिसोर्स में सभी आपने कौन सी रिसोर्स को कहा है कि वो लिमिटेड है? बेटा 5000। ये 5000 जो मेरे पास है ना, ये लिमिटेड है। अगर मेरे पास अनलिमिटेड होते या मेरे पास 10,000 होते तो मैं तो दोनों चीज़ें खरीद लेती, ठीक है? 15 होते तो शायद मैं कोई एक और चीज़ का इजाफा कर लेती, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5000 है। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक्स सिलेक्ट कर ली और मेकअप सिलेक्ट नहीं किया, सही है? तो मेकअप जो कि मैंने सिलेक्ट नहीं किया, जो कि मैंने गिव अप कर दिया, दैट इज considered to be my opportunity cost. That is considered to be my opportunity cost. What's opportunity cost? Opportunity cost is the next best alternative given up or foregone. That means कि दोनों मेरे लिए बेस्ट थे, ठीक है? जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास रह गया,
जो मैंने गिव अप कर दिया, जो मैंने जाने दिया, फॉरगॉन कर दिया, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब एक और सवाल, आप लोग मुझे ज़रा ये सोचें इस बात में बैठ के कि मिस व्हाट लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने क्यों दो चीज़ों के दरमियान में सिलेक्शन की, क्यों आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई? बिकॉज आई वॉज हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। रिमेंबर, लिमिटेड रिसोर्सेज थी मेरे पास, यानी कि मेरे पास पैसों की कमी थी, ठीक है, फाइनेंस की कमी थी। बेटा किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की कमी को हम कहते हैं स्कार्सिटी, दैट मीन्स लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ अगर आपके पास कम है, अवेलेबल नहीं है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो मिस अभी आपके पास किस चीज़ की कमी थी? मेकअप की? बिल्कुल भी नहीं बेटा, मेरे पास जो कमी थी दैट वाज स्कार्सिटी ऑफ फाइनेंस, पैसों की कमी थी मेरे पास। मिस व्हाट इफ कल को आपके पास टाइम ना हो, तो फिर बेटा उसे हम कहेंगे स्कार्सिटी ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंसिडर दीज थिंग्स। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी? मैंने आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। वंस वी इंट्रोड्यूस द चैप्टर, वी लर्न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन वी लर्न अबाउट लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, वी लर्न अबाउट नीड्स, वांट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्कार्सिटी एज वेल। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा और ये सारी चीज़ें आपने अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व ज़रूर की होंगी। ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली हर चीज़ जो है हमारे पास रियल लाइफ में होती है मौजूद। सही है, बिजनेस की हर चीज़। Now moving on with another concept of business, and the other concept of business is about added value. Added value. Added value क्या होता है? बेटा added value कहते हैं when you try to enhance the worth of a product. जब आप किसी प्रोडक्ट की वर्थ को enhance करते हैं, बेहतर करते हैं, बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ रॉ मटेरियल्स पिक किए, जैसे आपने सिर्फ ना लकड़ियाँ उठाई, वुड्स उठाई, ठीक है, दैट वर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उस वुड की कीमत उतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू अ चेयर दैट इज मेड आउट ऑफ दैट वुड। ठीक है, वाई? बिकॉज दैट चेयर इज अ फिनिश्ड गुड। आपने उसमें थोड़े से एफर्ट्स किए हैं, कुछ मेहनत आपने की है उस पर, जिसकी वजह से उसकी वर्थ बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एडेड वैल्यू क्या है, तो वी कैन से दैट एडेड वैल्यू इज बेसिकली द इन्हांसमेंट ऑफ वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन मिस इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास इसका फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पर मिस अभी आपने कहा कि जब आप किसी चीज़ की वर्थ को इन्हांस करते हैं दैट इज योर एडेड वैल्यू, तो इसमें फॉर्मूला कैसे आ गया? क्योंकि बेटा अगर आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे दैट वाज योर कॉस्ट प्राइस, राइट? आपने लकड़ियाँ खरीदी, आपने हैमर खरीदी, आपने नेल, वो सॉरी नेल खरीदी, और ये सारी चीज़ें जो आपने खरीदी, पॉलिश किया आपने उसको, दैट वाज योर रॉ मटेरियल। लेकिन आपका फिनिश्ड गुड क्या था? फिनिश्ड गुड आपका था चेयर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपको रॉ मटेरियल तो इतना महंगा नहीं पड़ा होगा जितना महंगा आप उसको बेचेंगे। तो मैं हम महंगे का क्यों बेच रहे होंगे? क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। ठीक है, आपने उसमें एफर्ट्स डाले हैं, दैट इज वाई यू आर सेलिंग इट फॉर अ हायर प्राइस। ऑलराइट, तो मिस कैन वी से कि प्रॉफिट ही हमारा एडेड वैल्यू है या एडेड वैल्यू हमारा प्रॉफिट है? राइट नाउ तुम कंसिडर कर सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। और अभी क्यों कंसिडर कर सकते हो? बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑन द वेरी बेसिक लेवल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अभी कंसिडर कर लो, कोई मसला नहीं है। आगे जाके मैं बता दूंगी व्हाई वी कैन नॉट से दैट एडेड वैल्यू इज प्रॉफिट। ओके, सो व्हाट इज एडेड वैल्यू? एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अब आप जरा सोचेंगे, आई रियली होप कि आप लोग जेंडर्स गए होंगे, आप लोग चॉप चॉप वॉक गए होंगे और इन तमाम रेस्टोरेंट्स में गए हुए होंगे। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वो जो खाना वहाँ पे मिल रहा है वो इतना महंगा उनको नहीं पड़ता होगा, पर वो उसको महंगा बेचते हैं? वाई? Because they are charging price for the ambience, for the brand name, for the way how they are serving the food, right? For the taste that they are providing and so on. तो एडेड वैल्यू इन्हांस करने के ये तरीके होते हैं। आपने मोंडो का नाम सुना है? आई रियली होप कि आप लोगों ने सुना होगा। मोंडो अपनी कॉफ़ी कैसे प्रोवाइड कर रही है? क्या वो वैसे ही प्रोवाइड कर रही है प्लास्टिक के ग्लास में स्ट्रॉ और कैप लगा के, आइस डाल के? बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे प्रोवाइड कर रही है बेटा? वो उसको टिन या केन्स में प्रोवाइड कर रही है, और यही उसका एडेड वैल्यू बन गया। उसने सिंपल सी कॉफ़ी बनाई, उसको उसने सर्विंग में अच्छा कर दिया, यानी कि उसने उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दी, जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है उसने उसको ट्रेंड में ले आई। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एडेड वैल्यू। ठीक है, तो बिजनेस एडेड वैल्यू जो चार्ज करते हैं, दे चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांडिंग, on the basis of their customer service, on the basis of convenience that they are providing to the customer, on the basis of product quality as well. ठीक है, अब बेटा देखो, लेट्स सपोज, ठीक है, ये जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ दिस इज द ओरिजिनल सिनेरियो। ठीक है, अब ओरिजिनल सिनेरियो में आपकी जो सेलिंग प्राइस थी प्रोडक्ट की दैट वाज 50, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर 50 रुपीज़, लेकिन आपकी जो उस पर कॉस्ट आ रही थी दैट वाज 30 रुपीज़। ठीक है, दैट मीन्स योर एडेड वैल्यू
वॉज 20 रुपीज़। फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो ओनर हैं उन्होंने कहा कि यार 20 इज़ नॉट इनफ, 20 क्या है, इज़ नॉट इनफ। तो फिर क्या किया जाए, मुझे चाहिए 20 से ज़्यादा की एडेड वैल्यू। ठीक है, अब क्या करें, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन वन, जो हमारे पास ऑप्शन वन है बेटा, ओरिजिनल सिनेरियो को याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन वन है वो क्या है, ऑप्शन वन हमारे पास ये है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को 50 की जगह 60 कर दें, कॉस्ट प्राइस को हम 30 ही रहने दें, तो हमारी एडेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। राइट, तो अभी हमने क्या किया इस सिनेरियो में। अच्छा पहले तो ये बताओ, हमारी एडेड वैल्यू इनहांस हुई, इंक्रीज हुई? बिल्कुल हो गई मिस, 20 से 30 हो गई। ठीक है, अच्छा मिस अगर ऐसा सिनेरियो है तो हमने ये क्या किया था, हमने ये किया था बेटा कि हमने इंक्रीज की थी, increase the selling price by keeping the cost price same। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम छोड़ के हमने अपनी सेलिंग प्राइस को क्या किया, इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन वन। अगर आपको अपनी एडेड वैल्यू इनहांस करनी है तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके कॉस्ट प्राइस को सेम छोड़ दें। लेकिन मिस उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस मिस, हो सकता है कि हमारा कस्टमर उस चीज़ को इतना महंगा अफोर्ड ना कर सके, हो सकता है कि हमारा कंपेटिटर उससे सस्ती कीमत में बेच रहा हो और हमारा कस्टमर उसके पास चला जाए। ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज थिंग्स। तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं हो पाएंगे आपसे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद अनदर ऑप्शन। ठीक है, तो मिस अनदर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू हमारे पास ये है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी याद है किसी को, हमारी सेलिंग प्राइस 50 थी, तो हम ओरिजिनल सिनेरियो वाली ही सेलिंग प्राइस अभी भी रखें। ठीक है, लेकिन हम अपनी कॉस्ट प्राइस को 30 से 20 कर दें। ठीक है, तो फिर हमारी कितनी आ जाएगी एडेड वैल्यू, हमारी एडेड वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब कि कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल सिनेरियो हमारी एडेड वैल्यू अभी भी इंक्रीज हो रही है। राइट, अभी भी हमारी एडेड वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दिस मीन्स दैट एन अदर वे टू इंक्रीज द एडेड वैल्यू इज टू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस by keeping the selling price same। लेकिन मिस हमें कॉस्ट कम कैसे आएगी, क्या हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अब जब आप कॉस्ट कम करने की बात करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इसके भी आपके पास आते हैं। ठीक है, क्या होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिसको हम कहेंगे चीपर क्वालिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो मिस पॉसिबल है कि हमने बल्क बाइंग की हो, बल्क बाइंग की हो। बल्क बाइंग क्या होता है, बल्क बाइंग कहते हैं कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज किए, रॉ मटेरियल्स परचेज किए और आपने सप्लायर को कहा कि सर मैं इतने सारे आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ, चलिए आप मुझे डिस्काउंट दें, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। मिस इस कॉन्सेप्ट का कोई नाम है? बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट का नाम है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज व्हेन द पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में यानी कि पर यूनिट कॉस्ट में आपके पास बल्क बाइंग भी आ जाती है, आपके पास अर्ली पेमेंट्स भी आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए पर यूनिट की, उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लो कि जब आप बाहर जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, चलो पेंसिल की बात करते हैं, अगर आप बाहर जाके एक पेंसिल खरीदेंगे, दैट वुड कॉस्ट यू ग्रेटर और हायर देन द इंटायर बॉक्स ऑफ पेंसिल। पूरी जो पेंसिल का बॉक्स होगा ना वो खरीदो, आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, बट उसको अगर आप डिवाइड कर लोगे जितने नंबर ऑफ पेंसिल्स उसके अंदर हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी lesser than that price of individual pencil। ठीक है, why? Because bulk buying पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है which leads to economies of scale। I hope you are clear so far। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, you can note down those questions and once you are done with this lecture, you can ask me those questions। You can send me a message on WhatsApp or whatever is comfortable with you or whatever is feasible आपको कर सकते। Topic that we have is dynamic business environment। Now, what is meant by dynamic business environment? Basically, dynamic business environment refers to some conditions जिसमें business काम कर रहा हो, कुछ situations जिसमें business काम कर रहा हो, and those situations are changing constantly। ठीक है, those situations are not same। So I'll just write down a very precise definition just to make you understand the concept that dynamic business environments are the conditions in which businesses operate are constantly changing।
ठीक है, वो बिजनेसेस क्या हो रहे हो, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हो. तो in this situation, if the environment or if the conditions or if the situation is constantly changes, what as a business they should do for that, or in that situation the business must do a few things that makes it flexible or need to adapt a few things just to make sure that the business survives. ठीक है, for instance जब हमारे पास कोविड आया था, situations were changing, right? So even those businesses which were aiming to make profit or which were aiming to expand, वो भी survival के objective पे आ गए थे. Why? Because they need to make sure कि हम at least survive तो कर सकें in those dynamic business environments. ठीक है, so in this situation the businesses must be flexible and adapt to survive and grow. Now there must be a question in your mind कि मिस ये जो आप बात कर रही हैं changes की, changes या constantly changing, so what are those changes that can happen? ठीक है, so if I talk about the changes that can take place, the very first change or the very basic change, that is technological change. Technology, that means new innovations. ठीक है, number 2 we can say is consumer preferences. Consumer preferences अक्सर change होते रहते हैं, we all know that, right? That means consumer या फिर customer taste. ठीक है, वी कैन से द इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल. इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस कहते हैं हमारी जो इकोनॉमी की या हमारे मुल्क की जो कंडीशंस हैं, सच एज इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट हो जाती है इससे. देन वी कैन से दैट द लॉज एंड रेगुलेशंस. लॉज एंड रेगुलेशंस का क्या मतलब? गवर्नमेंट ने अचानक किसी प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया जो आपका रॉ मटेरियल था. ठीक है, सो आई विल राइट दैट गवर्नमेंट मे impose बैन, या फिर वो टैक्सेस इम्पोज कर देंगे, या फिर वो सेफ्टी रूल्स इम्पोज करने की कोशिश करेंगे. इनफैक्ट डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास कंपटीशन भी आ जाएगा. कंपटीशन कैसे? देयर आर न्यू राइवल्स इन द मार्केट. ठीक है, आपके कंपेटिटर्स या कोई नया बिजनेस मार्केट में आया है जो आपका कंपेटिटर है. ठीक है, और वो जो है वो कस्टमर यानी कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बहुत ईजिली वो अपनी तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि यू आर लूजिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बिकॉज ऑफ देम. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली the point to be explained in dynamic business environment. Again, I'm repeating my point कि what dynamic business environment is. Dynamic business environment वो conditions होती हैं जिसमें business काम कर रहा होता है, और वो conditions, वो situations frequently change हो रही हैं. ठीक है, अब जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ही मेजर है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं. हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर द कोर रीजन जिसकी वजह से हमारे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं. ठीक है, देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस. आपके मुल्क में क्या कंडीशंस हैं, क्या सूरत हाल है, वो आ जाती है. इकोनॉमिक कंडीशंस रेफर्स टू द कंट्री. ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन भी इम्पोज किए जा सकते हैं यहाँ पे. जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक ऐप थी टीमू या टैमू के नाम से, राइट? दैट वाज नॉट अ पाकिस्तानी ऐप, सही है, लेकिन उसने दराज को बहुत टफ कंपटीशन दिया था. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने इधर इस ऐप से ख़रीदने वाली प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिसकी वजह से प्राइस जो थी उस ऐप की, यानी कि उस ऐप पे रखी हुई चीज़ों की, अवेलेबल चीज़ों की, वो इंक्रीज हो गई. पीपल स्टार्टेड गेटिंग वरिड अबाउट इट कि यार ये क्या बात हुई. तो फिर उन्होंने क्या किया, दिस स्विच टू दराज. क्यों? अच्छा, जब ये वाली ब्रांड आई थी, ये वाली ऐप आई थी, तो दराज की सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने दराज को सपोर्ट किया. ठीक है, क्यों? कैसे? अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को लॉन्च करके, या अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करके. ठीक है, एंड देन वी हैव कंपटीशन. मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ सकता है, आपका नया कंपेटिटर मार्केट में आ सकता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आई होप दीज सिनेरियोज आर गेटिंग क्लियर टू यू. अगेन आई वुड रिपीट, हर टॉपिक के बाद मैं यही बात कहती हूँ कि इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. Let's move on towards another concept, that is why business succeed or why they fail. इसको बहुत ही प्रिसाइजली हम पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यों कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल रहता है और क्यों कोई भी बिजनेस फेल हो जाता है. ठीक है, वाई बिजनेसेस सक्सीड और फेल. सो द रीज़न बिहाइंड बीइंग सक्सेसफुल फॉर एनी बिजनेस इज़ कि वो कस्टमर पे फोकस करता है. वो ये देखता है कि कस्टमर की
प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर में. Those businesses that are successful are having strong leadership, are having strong leadership. ठीक है, उनके पास बहुत ही efficient management style होता है उनका. ठीक है, management style means they are able to manage their labor, that means their worker, they are able to manage a few strategies of the business. ठीक है, and most importantly they have sufficient finance. सफिशिएंट फाइनेंस का मतलब कि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आपके पास किसी चीज़ के पैसे हों या ना हों, इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि योर बिजनेस इज एबल टू सर्वाइव, जिसमें आप मार्केटिंग में पैसा अपना लगा सकें, सो दैट पीपल विल गेट टू नो दैट येस दिस इज़ योर ब्रांड एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. ठीक है, सो दिस इज़ वेयर यू कैन invest money or you should have enough money for it. ठीक है, but on the other hand if there is any business that is अनसक्सेसफुल मतलब फेल हो रहा है अगर कोई बिजनेस, तो उसका क्या रीजन हो सकता है. इफ देयर इज एनी बिजनेस दैट इज नॉट एबल टू सर्वाइव और इज फेलिंग, उसका सबसे बेसिक रीजन होता है पुअर कैश फ्लो. अब ये कैश फ्लो क्या होता है बेटा? कैश फ्लो कहते हैं, एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली कैश फ्लो. ठीक है, जिसमें कैश इनफ्लो यानी कि बिजनेस में कितना पैसा आया वो, और कैश आउटफ्लो होता है लिखा हुआ. ठीक है, तो कैश आउटफ्लो इस बिजनेस से कितना पैसा बाहर गया. नाउ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, if in your business there is greater amount of cash outflow as compared to the cash inflow, अगर आपके बिजनेस में कैश आउटफ्लो ज़्यादा है यानी कि आपने ज़्यादा पैसे बिजनेस से बाहर निकाले और आपने कम पैसे रिसीव किए हैं, दैट मीन्स यू हैव अ पुअर कैश फ्लो. ठीक है, विच विल बी अ प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर. ओके, देन पुअर कैश फ्लो के अलावा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पुअर कैश फ्लो के अलावा आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो बिजनेस है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा ना हो, लैक ऑफ डिमांड. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड अच्छी नहीं होती. ठीक है, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, तो लैक ऑफ डिमांड. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, जिसको हम कहेंगे टू मच कॉम्पिटिशन. ठीक है, दैट मीन्स आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, या फिर आपकी मैनेजमेंट स्टाइल बहुत वीक है. देखो, मैंने जब आपको बता रही थी कि बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होते हैं या क्यों होते हैं, उसमें वी अंडरस्टूड द थिंग दैट दे हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट? बट व्हेन दे हैव वीक मैनेजमेंट दे टेंड टू फेल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स अराउंड अस जो सक्सेसफुल रही. क्यों रही हमें ये भी पता है, वो कस्टमर पे फोकस कर रही थी, उनके लीडरशिप स्टाइल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है, सो देर आर रीजन्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल माई पॉइंट्स. इन केस अगर अभी कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है, आई एम हियर टू आंसर, आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी. Now it's time to move towards another concept or another topic of the same chapter, and that is types of businesses. टाइप्स ऑफ बिजनेसेस का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द कितनी किस्मों के बिजनेसेस होते हैं. लेकिन इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई, एक होता है सोल ट्रेडर, एक होता है पार्टनरशिप, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, राइट? सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस दैट वी हैव इज द लोकल business. What are local businesses? Better, local businesses are those businesses that are operating in a particular area. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपका कराची में हमारे पास कोई ब्रांड है जो सिर्फ कराची में, कहीं और नहीं है, दैट इज़ अ लोकल बिजनेस. ठीक है, अब आपके घर के पास अगर कोई चाय का होटल है, दैट इज़ लोकल बिजनेस. ठीक है, सो लोकल बिजनेस आर बेसिकली, या लोकल बिजनेस बेसिकली ऑपरेट्स इन अ स्मॉल geographical area. Okay, then we have another type, that is national business. What are national businesses? National businesses are the business that operate in the entire country. उसकी एक ब्रांच, उसका एक कैंपस या उसका एक ऑफिस कराची में होगा, दूसरा ऑफिस इस्लामाबाद में हो सकता है, तीसरा फैसलाबाद में हो सकता है, एंड सो ऑन. ओके, सो दैट बिजनेस, विच बिजनेस? नेशनल बिजनेस ऑपरेट्स अक्रॉस द होल कंट्री. ठीक है, पूरे मुल्क में आपको वो बिजनेस देखने को मिल रहा होगा. आफ्टर दैट वी हैव two important businesses or types of business which is very important for you guys to understand. ठीक है, you don't need to worry कि क्योंकि why I'm saying this, the reason why I'm saying this is कि बच्चे confused रहते हैं इस चीज़ में. So the very first thing is international business. इंटरनेशनल बिजनेस में और मल्टीनेशनल बिजनेस में फ़र्क होता है, ये सेम नहीं होते.
इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स या अक्रॉस द कंट्री सेल कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट को, लेकिन मैन्युफैक्चर वो एक ही कंट्री में कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड का प्लांट है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी प्रोडक्ट, और वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है अफगानिस्तान में, ईरान में, ये सब कुछ. ठीक है, सो दिस इज एन इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, दैट मीन्स एन इंटरनेशनल बिजनेस सेल्स अक्रॉस borders but not globally. All right, then we have multinational business. Now what are multinational businesses? Multinational business वो होते हैं जो multiple countries में operate कर रहे होते हैं, उनके plants, उनका manufacturing different countries में मौजूद होता है. ठीक है, so that means operates in many countries. Miss KFC? Yes, KFC is a multinational countries with global presence. All right, I hope you are able to understand this concept of what are the types of businesses: local, national, international, and multinational. I would like to assign you a task for this. You need to write one example of each type of the business. अच्छा, let me add the question. One real life example. ठीक है, real life example आपने लिखनी है, और आपने कोई assumption based नहीं लिखनी है, real life लिखनी है examples. ठीक है. Now moving on with another concept that is about entrepreneurs and intrapreneurs. We already know who are entrepreneurs, right? Entrepreneurs कौन होते हैं हमें पहले से मालूम है. कौन होते हैं बेटा entrepreneurs? Entrepreneurs are the people who invest finance in order to take risky. ठीक है, दोज आर नोन एज entrepreneurs. उनको हम entrepreneurs कहते हैं जिनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है. किस हिसाब से रिस्क लेने की? पैसे इन्वेस्ट करने की. तो वो तो होगा entrepreneurs. बट हु आर इंटरप्रेन्योर्स, सॉरी हु आर इंट्राप्रेन्योर्स, अभी हम इनको भी देखेंगे कि इंट्राप्रेन्योर्स हमारे पास कौन होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट. If I talk about entrepreneurs, so entrepreneurs are basically the owners of the business, the one who has invested finance into the business. ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम entrepreneur कंसिडर करेंगे. ठीक है, जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, जिनका अपना पैसा बिजनेस में है, या फिर जो डायरेक्टर या ओनर कंसिडर किए जाएंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे entrepreneurs. ठीक है, बट इफ वी आर कंसिडरिंग देम entrepreneurs, देन हु आर इंट्राप्रेन्योर्स? ठीक है, सबसे पहले तो entrepreneurs को सही से समझ लेते हैं. entrepreneur are or is a person who takes the risk of starting and managing their own business with the aim, या चलो ये वाला लाइन छोड़ दो, बस बिजनेसेस तक समझो. ठीक है, अब की पॉइंट क्या है? की पॉइंट इसका ये है कि दे ओन द बिजनेस, दे बेयर द रिस्क. ठीक है, द रिस्क ऑफ लॉस एंड रिवॉर्ड्स. ठीक है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. ठीक है, वो कौन होंगे? वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे. ठीक है, इंट्राप्रेन्योर्स आर द एम्प्लॉयज विद इन द बिजनेस. इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं एम्प्लॉय विद इन एन एग्जिस्टिंग business who develops new ideas, product or processes. So if I talk about myself, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, मैं उस स्कूल कॉलेज की क्या हूँ? एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर. ठीक है, समझ आ गया सबको? आई रियली होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. Now, once you are done with the concept of entrepreneur and intrapreneur, we have to proceed towards another concept that is risk and uncertainty. अब देखो, ये कुछ ऐसे words हमारे पास आ रहे हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं. This is something new for all of us. ठीक है, risk and uncertainty होता क्या है? एक होता है बेटा रिस्क, एक होती है अनसर्टेनिटी. रिस्क क्या होता है? रिस्क कहते हैं आपको पहले से आइडिया था कि ये हो सकता है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको पहले से आइडिया था कि ये मशीन जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी. यू ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट आपके जो कैश फ्लो है वो इंडिकेट कर रहा था कि आप लॉस में जा सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट्स दैट?
That is risk. That means risk is anything or any outcome that is already estimated or predicted. Okay, so what's risk? Risk is outcome that is predicted or estimated. ओके ओके, अगर रिस्क इसको कहते हैं तो अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी कहते हैं बेटा जब आपके ख्याल में कुछ फैक्टर्स ना हो, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अनसर्टेनिटी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से ही आती है. अनसर्टेनिटी मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, अनएस्टिमेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, अब वो अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मिस? जैसे कोविड आ गया, हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा, कोविड आ गया, कितना कितना ज़्यादा लॉस बिजनेसेस को हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड द लॉकडाउन, राइट? तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज अनसर्टेनिटी. बिजनेस को ये तो पता था कि भाई हमारे पास लॉस हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, दैट मीन्स रिस्क, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. मूविंग ऑन towards another thing. I hope यहाँ पे आपको risk और uncertainty समझ आ गया है. I would like to give you a question regarding this topic to provide me again a real life example of risk and uncertainty. All right. Now moving on with another concept, that is कि मिस आपने हमें ये बताया कि एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बट नाउ बेटा इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि एक एंटरप्राइज यानी कि एक बिजनेस कैसे किसी भी इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू डेवलप. ठीक है, सो वी विल से दैट बिजनेसेस या फिर बिजनेस एंटरप्राइज इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, अब देखो बिजनेसेस किसी भी मुल्क को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने में कैसे हेल्प आउट करते हैं बेटा? द वेरी बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कह लो. ठीक है, अब याद रखेंगे कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जैसे जैसे आपके पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती रहती है, क्राइम रेट आपके पास ऑटोमेटिकली कम भी हो जाता है और आपके पास जो लाइफ स्टाइल है आपकी आवाम का, आपके मुल्क की आवाम का, वो बेहतर होने लगता है. ठीक है, देन आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनोवेशंस आने लगती हैं प्रोडक्ट्स में. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लगता है. टैक्स रेवेन्यू का क्या मतलब? टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये कि बिजनेस आपके पास से गवर्नमेंट जो है वो पैसे ले रही होती है. ठीक है, दैट मीन्स इट कुड बी योर कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है, प्रॉफिट पे आपके इम्पोज होता है. देन वी हैव इनकम टैक्स, आपके एम्प्लॉयज़ पे इम्पोज होता है. ठीक है, तो उस पर हमारे पास ये टैक्स रेवेन्यू कंसिडर कर लिया जाता है. देन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो बिजनेस हमारे ऑपरेट कर रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स कितने अच्छे होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स कितनी अच्छी होती हैं. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे पास ये हेल्प करेगा, कोई भी बिजनेस हमें हेल्प कर सकता है. ठीक हो गया. देन एज आई टोल्ड यू कि जस्ट बिकॉज वी हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वी हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो हमारे मुल्क की आवाम का क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड या फिर लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा. ठीक है, so this is the point or these are the reasons how an enterprise can help or play its role or play its part in development of any economy. I hope the entire concept is clear to you. All right everyone, moving on with the last concept or last topic of this chapter, and the last topic of this chapter is about business plan. The last topic of this chapter is बिजनेस प्लान. नाउ व्हाट इज बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान होता क्या है बेटा? बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस अपनी सारी डिटेल्स लिखता है. फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द बिजनेस, why that business has started, what's the objective of this business, how they are going to analyze the market, what are the strategies that they are going to use for the 4Ps, वो कौन से operations plan कर रहे हैं, उनकी resources कौन सी हैं, क्या location है उधर की, उनका financial data क्या है. These things are included in that document. All right, so let me write down what a business plan actually is. A business plan is a written document that outlines objectives, strategies, and financial
फाइनेंशियल फोरकास्ट। ठीक है, अच्छा, अब एज आई टोल्ड यू कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स, मैंने अभी आपको बताए थे की एलिमेंट्स। नंबर वन हमारे पास होती है समरी लिखी हुई होती है आपके बिजनेस प्लान में, ठीक है, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस। देन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन इज मेंशन्ड इन दैट। ठीक है, आगे जाके हम इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। इन द सेम सेक्शन वी हैव अ टॉपिक जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, स्ट्रैटेजी, एम्स, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। देन ये हमारे पास और भी चीज़ होती है कि हम मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे, ये भी चीज़ इसमें मेंशन हुई भी होती है। और क्या होता है, और हमारे पास इसमें मार्केट स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेंशन होती है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर मेंशन। क्या हम अपने 4 P's, 4 P's भी आपको सिखाऊंगी 4 P's को कैसे एनालाइज करते हैं। बट लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी प्रिसाइज meaning of these 4 P's. 4 P's beta stands for product, price, place and promotion. ठीक है, since all of these words start with P तो हम उसको कहते हैं 4 P's. ओके, आफ्टर दैट, अच्छा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मार्केटिंग के पार्ट में आ जाता है। तो मार्केटिंग में कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हैं टू इनोवेट योर प्रोडक्ट, प्राइस को कैसे सेट करें, प्लेस कैसे डिसाइड करें और अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, वो सब हम इसमें पढ़ रहे होते हैं और ये स्ट्रैटेजीज बिजनेस प्लान में इंक्लूडेड होती हैं। देन द ऑपरेशन प्लान्स, ऑलराइट, द फाइनेंशियल प्लान एज वेल, कि आपके पास जो कैश फ्लो है आपका, मैंने अभी समझाया था, जो आपका कैश फ्लो है वो कितना है। आपका कैश फ्लो अगर इतना है तो आपने फंड्स कहाँ से रेज किए, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और आपके इन्वेस्टर्स कौन थे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपके इन्वेस्टर्स कौन थे, या फिर आपके पास कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या सिनेरियो है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली अ फ्यू थिंग्स दैट आर सपोज टू बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस प्लान। नाउ मिस, ये तो हमें समझ आ गया कि बिजनेस प्लान क्या है, हमें ये भी समझ आ गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ बिजनेस प्लान। अगर हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा है बिजनेस को। चलो हम पर्पस पहले सीखते हैं, फिर हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी सीख लेंगे। ठीक है, पर्पस ये है कि आप लोगों ने अगर शार्क टैंक देखा हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, देयर आर सम पीपल, दोज हु आर इन्वेस्टर्स, दे हैव अ फाइल विद देम, और जब कोई प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो दे हैव दैट फाइल विद देम और फिर वो उसमें ना कुछ चीज़ें नोट डाउन करते रहते हैं। बेसिकली उस फाइल में बिजनेस प्लान होता है। वो बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स को पहले से दे दिया जाता है और फिर वो इवैल्यूएट करते हैं इस सारी डिटेल को ऑब्जर्व करके, समरी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस प्लान और फाइनेंशियल प्लान को ऑब्जर्व करते हुए कि डू वी एक्चुअली नीड टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नॉट। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास क्या होगा, पर्पस, हेल्प टू सिक्योर फाइनेंस। नंबर टू हमारे पास होगा कि हम अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बता दें कि दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर हमारे पास स्ट्रैटेजीज पहले से डिसाइडेड हों तो फिर क्या होगा, स्ट्रैटेजीज अगर पहले से डिसाइडेड होंगी तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी है। ओके, देन वी कैन ईजिली ट्रैक द प्रोग्रेस कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमने कितना काम कर लिया, हमने कैसे कर लिया, दीज ऑल थिंग्स। ओके, सो दिस इज बेटा द पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान। अब अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की, बिजनेस प्लान के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, नंबर टू, इट विल प्रोवाइड डायरेक्शन। नंबर थ्री, इट विल आइडेंटिफाई रिस्क। अभी मैंने ना ये सारी चीज़ें बता दी हैं, इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करी। ठीक है, इवन इट विल इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स एज वेल। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ दैट बिजनेस, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, तो सबसे पहला और मेजर ड्रॉबैक जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर बिजनेस प्लान इज बेस्ड ऑन assumptions ओनली। ठीक है, और assumptions पे अगर ये बेस करती है तो क्या होगा, गलत भी हो सकती हैं, विच मे बी रॉन्ग। ठीक है, आपकी assumptions गलत भी तो हो सकती है ना, आपने सोचा ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, देन इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, देन इट माइट बी कॉस्टली टू प्रिपेयर, क्योंकि आपको सही से उन चीज़ों को देखना होगा, सही से इवैल्यूएट करना होगा, सो इट कुड बी कॉस्टली। ठीक है, एंड यू कैन नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट और एस्टिमेट और अज्यूम द फ्यूचर चेंजेस। पर्टिकुलरली अगर मैं किसी फ्यूचर चेंज की बात करूँ तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपको नहीं पता होता कि क्या आने वाले हैं। ठीक है, सो आई वुड से ओवर हियर कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस।
All right. So these are the drawbacks basically of a business plan. So let's just have a quick recap of what we have studied so far. In this chapter, this was chapter number 1 of section number 1 of Business AS 9609, in which we started the chapter with understanding the name of the chapter, which was enterprise, which was connected with factors of production. So we understood what are the factors of production, that's land, labor, capital, enterprise. While we were understanding labor, we moved towards labor intensive and capital intensive firms. Once we have covered this, we move towards enterprise, and then we learned that the person who is taking the risk, or the person having that risk taking ability, is known as entrepreneur. After that, we learned about some basic concepts, that was need, want, opportunity, cost, scarcity, and added value. We learned the two methods in order to enhance the added value. After that, we learned about the concept of economies of scale. After that, we learn about dynamic business environment and what are the changes that are taking place. Then we have learned why business are successful and why the businesses get fail. Then we have learned the types of businesses, in which I ask you to write one real life example of each of the following: local, national, international, and multinational. Then we have learned about entrepreneurs and intrapreneurs. We have also learned about risk and uncertainty. I ask you to write down one example of risk and one example of uncertainty. After that, we have also learned how businesses or business enterprise can help the economy to develop. Then we have learned about details about a business plan. A business plan is a document that outlines objectives, strategies, and financial forecast. We have then learned about the purpose of a business plan, the benefits of the business plan, and the drawbacks of the business plan. By this, we have completed our first chapter of enterprise, alhamdulillah. And in case if there is anyone having any